జై కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఫ్రీ బస్సు ₹1 కూడా ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ గతంలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇస్తారు. మేడం ఢిల్లీకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనం అందరినీ ఒకసారి కలిసి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ ఏమంటారు ఫ్రీ బస్సు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొత్తం చేస్తామని చెప్పి మేడం ఢిల్లీకి ఎంత వచ్చి మన జిల్లా కూడా గ్రామాలలో కూడా మున్సిపాలిటీ జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ వడంపేట కార్పొరేషన్ నీర్పేట కార్పొరేషన్ ఆర్కేపురం సరూర్నగర్ డివిజన్ ప్రజలందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరికీ పేరు పేరున ఎన్ఎస్ఐ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులకు మహిళా సంఘాలకు మహిళా అధ్యక్షులకు అందరికీ పేరు పేరున ఈ సభను జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ వీళ్ళందరూ సహకరిస్తున్నందుకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ అదేవిధంగా ఈరోజు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు కానీ తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి తెలంగాణ దేవత సోనియమ్మ గారు తెలంగాణ ఇచ్చి 9.5 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం పీజీసీ మెంబర్ దేవభాస్కర్ రెడ్డి గారు, జీవిత నరసింహారెడ్డి గారు, మధుసూదన్ రెడ్డి గారు అందరం కూడా ఈ వేదిక మీద నుంచి నిన్న బహిరంగ సభ ఏదైతే విజయభేరి అని రాష్ట్రంలో కాకుండా ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి సిడబ్ల్యూసీ నాయకులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఇది భారతదేశ చరిత్ర పుటలో కూడా ఒక గొప్ప సమావేశం. ఏదైతే సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి తెలంగాణ దేవత నలుమూల గ్రామాలలో ప్రతి దళిత గిరిజన బలహీన బడుగు వర్గాలు అమ్మని యాద్ చేసుకుంటున్నారు. ఆనాడు తెలంగాణ ఏదైతే ఇస్తే ఉద్యోగాలు తాగునీరు సాగునీరు మనకే ఉంటాయని చెప్పి ఎన్నో ప్రకల్పాలు పలికిన కేసీఆర్ ఎంతోమంది విద్యార్థులు బలిదానం చేసుకుంటే సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తెలంగాణను 9.5 సంవత్సరాలలో అప్పుల భారం చేయడం వల్ల మళ్ళీ అమ్మ తెలంగాణ సోనియమ్మ రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు రాబోయే తరాలకు భావి ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, సిడబ్ల్యూసీ మెంబర్లు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు బట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది పెద్దలు ఈ బహిరంగ సభలో ఏవైతే ఐదు దానికి మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీలో బహిరంగ సభ పెట్టడంలో ఇక్కడ ఉన్న కాన్స్టిట్యూన్సీలో మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబం కాంగ్రెస్ అభిమాన కుటుంబం, కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఎన్ఏఎస్ఐ, యూత్ కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్, ఎస్టీ సెల్, ఎస్సీ సెల్, వివిధ విభాగాలు అన్నీ కూడా భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని మహేశ్వరంలో ఈ బహిరంగ సభలో ఎవ్వరం కూడా ఒక అడుగు ఎంపికయ్యకుండా భారీ ఎత్తున కనీసం 45,000 నుంచి 50,000 వరకు మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి తీసుకెళ్లడం, కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న నాయకులే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా కాంగ్రెస్ అభిమానులు కొంతమంది వివిధ వేరే పార్టీలు ఉన్న తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లిని అతిరథ మహారథులు వచ్చిన ఈ మీటింగ్లో చూద్దామని చెప్పి ఎంతోమంది వచ్చిన ప్రతి మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీ బిడ్డలకు అందరూ కూడా జిల్లా తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మా మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీలో బిడ్డలకు అందరికీ కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రముఖంగా మేమైతే అసెంబ్లీకి 8 మంది పోటీ పడుతున్నామో 8 మంది కూడా ఎవ్వరు కూడా ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ కాకుండా సమానమైన రీతిలో సమానమైన ఆలోచనతో ప్రజల ముందుకు వెళ్ళి ఏదైతే బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలనుకున్నామో అందరూ కూడా విజయవంతం చేసినందుకు ఆ నాయకులకు కూడా మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీ నాయకులకు
ప్రత్యేకంగా వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ప్రత్యేకంగా పత్రికా సోదరులు, ప్రింట్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ 10 దినాల నుంచి నిరంతరం మహేశ్వరం కానీ, కందుకూరు కానీ, ఇటు మీర్పేట కానీ, ఇవన్నీ మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీలో ప్రతి మీడియా, ప్రతి ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళు కూడా రోజు ఏదో కార్యక్రమం గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే బతుకు తెరువు ఉంటుందని చెప్పి ఆలోచించి పత్రికా వాళ్ళు కూడా ఈ 8 దినాలు నిరంతరం రాసినందుకు ప్రత్యేకంగా పత్రికా సోదరుల వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జై కాంగ్రెస్. लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग जब तक तेलंगाना अनाउंस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। वो ऐसे पर मतलब इतना बड़ा शपथ लेके वहाँ अपना पब्लिक के बात वहाँ जाके बोले और वहाँ से करवा के लाए। केसीआर यहाँ पे बैठे थे, वो अपना ज़मीन पे लोगों को एक ही बात करते थे। कांग्रेस को भी वादा किया था कि अगर हम तेलंगाना आप लोग यूपीए 2 सरकार देते हैं तो हम साथ मिलके चलेंगे, लेकिन वो पहला वादा तोड़ दिया। अब स्थिति ऐसा है कि 10 साल ये सरकार बनने के बाद लोगों में बहुत सारे रोष है, लोगों में बहुत सारे नाइंसाफ़ी के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ के माइनॉरिटीज़ में वहाँ का जो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी था वो इंक्रोच हो गया, लेकिन उस इंक्रोचमेंट को हटाने के बाद भी ये सरकार किए थे, वो किए नहीं। तो इसका कागज़ सारे हम आपको दे देंगे और भी सारे डिटेल में है। लेकिन कल जो 5 वादा हम लोगों ने किए हैं, अगर हमारा सरकार बनती है तो हर एक राज्य जैसा वादा हम लोग ये गारंटी यहाँ पे भी दिए हैं। 5 गारंटी। पहले तो है महालक्ष्मी, जो आप लोग जानते हो कि महिलाओं के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी हर एक स्टेट में महिलाओं को 3,500 रुपया महीना में, फिर उसके बाद फ्री बस में जर्नी करने के लिए फ्री बस सर्विस, और गैस सिलेंडर का सबसे ज़्यादा हम लोगों ने रद्द किया है कि 500 रुपया में गैस मिलेगा सिलेंडर। वैसे रायतू भरोसा, उसमें भी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए साल में 15,000, एक श्रमिक जो है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए 12,000 साल में। वैसे युवा विकासम, उसमें भी हम लोग दिए हैं कि यूथ को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रोज़गार इतना जल्दी भी हम लोग कर नहीं सकते। तो जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको छोटा कोई व्यवसाय करने के लिए पैसा इकट्ठा दे दें, तो वो उसके लिए भी हम लोग स्कीम रखा है। इंदिरा अम्मा इंदलू में, इसमें भी घर जिनके पास मकान नहीं है, देखिए इंदिरा जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए 20 दफ़ा कर्म सूची बनाए थे, और वही 20 दफ़ा कर्म 20 पॉइंट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आज भी पूरे हिंदुस्तान के पंचायत लेवल पे वही स्कीम आज भी चालू है। सरकार बदल गए, बीजेपी सरकार आई तो स्कीम का नाम बदल दिया, लेकिन स्कीम्स वही है, आज भी वही चलता है। वैसे ही हम लोग गरीब किसानों को, या जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको ज़मीन उसके साथ मकान बनाने के लिए पैसा, ये भी हम लोग दिए हैं। जो हम लोग फ्री में विद्युत देने की बात, इलेक्ट्रिसिटी के बाद किए हैं, 200 यूनिट फ्री मिलेगा। और चौथा, ये इसमें भी हम लोग जो एल्डरली लोग हैं, इन लोगों को हर परिवार में एक जन को पैसा मिलेगा, ताकि परिवार को आगे से आराम से वो कर पाए। गर्ल जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए भी स्कूटी का बात किए हैं हम लोगों ने। तो हम लोग जो गारंटी 5 पॉइंट गारंटी दे रहे हैं, हर एक गारंटी हर एक स्टेट में हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो इस बार तेलंगाना की बारी है, और हमें लग रहा है कि तेलंगाना के लोग आने वाला दिन में इस बार चुनेंगे कांग्रेस को, क्योंकि बीआरएस सरकार के ऊपर भरोसा चला गया, और हम लोग जो एकता दिखाते हुए तेलंगाना के आम जनता के लिए जो स्कीम्स लाए हैं, जो काम करना चाहते हैं तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए तेलंगाना में एक कॉमन चीज़ है, जो बंगाल का जंगल एरिया है, जंगल महल जिसको हम कहते हैं, वहाँ से शुरू करके झारखंड होते हुए, उड़ीसा होते हुए, आंध्रा होते हुए तेलंगाना में वो एरिया ख़त्म होता है, जो जंगल एरिया है।
उस जंगल का एक तरफ तो जंगल का जो कैसे मान रखा जाए, जंगल में रहने वालों को जो अभी भी हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, अब तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे भी है। क्यों है? क्योंकि डिप्रेशन है, ऑपरेशन है, इन लोगों के ऊपर बहुत नाइंसाफ़ी किया गया। तो यहाँ पे जो माइन एरिया है वहाँ भी लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उस एरिया में जो श्रमिक को जो काम देने वाला बात था वो हुआ नहीं और कॉरपोरेट को दे दिया, सो कॉरपोरेट अपना हिसाब से वहाँ चलाता है। तो इस सरकार के ऊपर गरीबों का जितना रोष है उतना ही रोष है जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, जिनको हम कॉलेज प्रोफेसर्स बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब है। तो ये हम ये देख चुके हैं कि तेलंगाना में हर एक कम्युनिटी के लोग, और खारगे जी और सोनिया जी का ये कहना है, हर एक कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, एक साथ चलने के लिए जो भी कार्यक्रम हमें बनाना है वो हम बनाएंगे। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम था। हम लोग घर घर जाके पूरा एक मोहल्ले में हर एक घर पे जाके हम लोग वो 5 गारंटी अभी कर चुके हैं, अभी करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं। लोग बहुत खुश हैं, लोग तैयार हैं। अब कब वोट होगा, वोट देने के लिए आप सबको धन्यवाद। आप जितने भी हमारे प्रेस साथी आए हैं सबको हम धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल आप लोग ज़रूर वहाँ गए हुए थे, आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप लोग भी हम लोगों को समर्थन दें, ताकि जो आरटीआई जो प्रेस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, वो एक्ट हम लोगों ने लाए थे यूपीए 1 सरकार में। तो प्रेस का जो सच बोलने, आप सबको विनायक चतुर्थी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा एक विजय वेरी, एक बहुत बड़ा रैली हुई थी कांग्रेस पार्टी के तरफ से। हमारे अध्यक्ष खारगे जी और सीपीपी अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, जिनको तेलंगाना के लोग सोनिया अम्मा बोलते हैं और मानते हैं कि तेलंगाना राज्य सोनिया जी छोड़ के और कोई दे ही नहीं सकते थे, ऐसे भरोसेदार सोनिया गांधी भी उस मीटिंग में हाजिर थी। राहुल गांधी भी मौजूद थे और हमारे तेलंगाना के सारे लीडर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी जी, उत्तम रेड्डी जी एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, सभी लोग मौजूद थे। और वो मौजूदगी में एक तो तेलंगाना के आम आदमी के मुंह में एक ही अभी नया स्लोगन आ गए हैं, बाय बाय केसीआर। क्यों बाय बाय केसीआर बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि 10 सालों में जो जो वादा उन्होंने किया था तेलंगाना बनने के साथ साथ, जो वादा तेलंगाना लोगों के लिए किए थे, वो वादा पूरा नहीं कर पाए। हम लोग अगर चार्जशीट को लेके बैठते हैं तो पहले हम कहेंगे जी, यहाँ पे जो बेरोजगारी, यहाँ के लोग, गरीब लोगों को जो बेरोजगारी थी, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम काम देंगे गरीबों को, लेकिन काम नहीं दे पाए। उनको अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर अलाउंस देने की बात किए थे, वो किए नहीं। यहाँ पे 3 मिनिस्टर है जो अपना फैमिली के हैं, जो परिवारवाद के लिए बीजेपी कहते हैं, जो केसीआर कहते हैं, लेकिन उनके अपना 3 मंत्री एक परिवार से है, फिर भी आम जनता के लिए वो लोग कुछ कर नहीं पाए। शुरू में हम लोग कहते थे कि उनका मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया और इस बार उनका जो चुनावी लिस्ट निकले हैं वहाँ कैंडिडेट के तौर पे 7 महिलाओं को जगह दिए। यहाँ पे जो सरकार के ऊपर कर्ज है वो 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो पूरा तेलंगाना के अगर एक जन प्रति हम लोग ये कर्ज को बांट देते हैं तो वो आता है 1,42,842 रुपया कर्ज एक जन के ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारे आरटीआई डाले हैं यहाँ के लोगों ने, एनजीओ ने डाले हैं, एक्टिविस्ट ने डाले हैं,
और वो आरटीआई का जो रिपोर्ट के हिसाब से सरकार की तरफ से जो खबर हमने मिले हैं, वो गवर्नमेंट खुद ही खबर देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे काम में बहुत सारे जो स्कीम है, वो स्कीम के लिए जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, वो स्कीम को डाइवर्ट किया गया, ताकि एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में खर्चा हुआ या तो खर्चा नहीं हुआ। डाइवर्ट करने का मतलब आप लोग सब समझते हो कि वो कहीं और चला गया, उसका हिसाब अभी तक मिला नहीं। करप्शन में तो बहुत आगे है तेलंगाना सरकार अभी, ये तो सबको पता है। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइंड माफिया, वाइन माफिया, सब में तो बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके खिलाफ भी हमारा चार्जशीट है। फिर किसान, यहाँ पे बहुत किसान यहाँ पे है, जो गरीब किसान अभी तक अपना लैंड रिफॉर्म के लिए लड़ रहा है, उस किसानों के लिए इन्होंने वो सारे रिकॉर्ड करके उनको ज़मीन देने की जो वादा किए थे, वो अभी तक। और इन्होंने, ये सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बाद भी किए थे, वो भी किया नहीं। इस सरकार ने जो गरीब किसान और मजदूरों के लिए जो वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। तो वह बीआरएस ने डाइवर्ट कर दिया। 45.8% जो फंड्स आया था एससी एसटी के लिए, वो डाइवर्ट हो गया। वो बजट एलोकेशन में सब प्लान सब कुछ किया, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में कोई उस बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं है। अब ये जो बीआरएस मॉडल कहा जाता है, तेलंगाना में बीआरएस मॉडल, देखिए हमारा भी सरकार है, हमारा राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कर्नाटक में अभी अभी सरकार बनी है। जो जो वादा कांग्रेस ने किए थे, वो सारे वादा में है। कुछ कुछ वादा हम पूरे कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो वादा से बावजूद भी हम लोग कुछ कुछ काम किए हैं। हिमाचल में आप लोग जानते हैं इतना बड़ा नेचुरल कैलामिटी हो गया, फिर भी हम लोग हमारा वादा पूरे कर रहे हैं। हमारा ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में चालू कर दिए हम लोग, पहला वादा था वहाँ पे, उसके मुताबिक यहाँ भी बीआरएस ने अनाउंस किया था, मुझे लगता है वो अभी तक चालू नहीं किए। लेकिन ये सारे गारंटीज जो है उसका इम्प्लीमेंट, एक तो सरकार कुछ गारंटी बोलते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग जो जो वादा किए हैं वो कर चुके हैं, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में कुछ और वादा किए हैं, वो भी हम लिस्ट अगर आपको दे दें तो इस मीटिंग के बाद हमारे पास जो कॉपी है हम आप सबको दे देंगे। वो कॉपी एक एक करके, ये जेरोक्स करके आप सबको ये पेज को दो। ये सरकार जो तेलंगाना मॉडल बना रहे हैं, हम ऐसे तेलंगाना कभी सोचा नहीं था। और यूपीए 2 सरकार जब हम लोग तेलंगाना अनाउंस किए थे, तो हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसे एक मॉडल तेलंगाना में बनेगा, जो मॉडल करप्ट है, जो मॉडल वादा पूरा नहीं करते हैं, जो सपना देख के तेलंगाना, मुझे अभी भी याद है, मैं तब एमपी रही लोकसभा में, यहाँ के हर एक एमपी वहाँ जाके धरना में बैठे थे लोकसभा में, और हम लोग कहते थे कि तुम अपने इलाके में जाओ, वो लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग